बड़ भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो। मन मानक संतोख्यो गुर नाम दृढ़ायो। अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुरु दर्शायो। गुर अर्जुन घर गुर रामदास अनुभव ठहरायो। गुर दाता गुर हिवै घर गुर दीपक तह लोए। अमर पदार्थ नानका मन मानै सुख होए। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कानड़ा महला पंजवा। ठाकुर जियो तुहारो प्रणाम। मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी शरणा। रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा। तुमरा नाम हृदय लै धरना। तुमरो बल तुम संग सुहेले। जो जो कहो सोई सोई करना। तुमरी दया मया सुख पावो। हो कृपाल ता भौजल तरना। अपै दान नाम हर पायो। सिर डारियो नानक संत चरना। तुमरी दया मया सुख पावो। हो कृपाल ता भौजल तरना। अपै दान नाम हर पायो। सिर डारियो
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1299 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੇਵਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠਾ ਹੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਅਜਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 1299 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ, कहते पवित्र। जिसने सुनिया है वो पुनीत होया है, जिसने पढ़िया है वो पवित्र होया है। इत्थे पढ़न सुनन वाले सारे जिहड़े ने वो लाहेवंद हुंदे ने। इत्थे सुनाउण वाले नूं घाटा नहीं पैंदा। इत्थे सुनाउण वाला जिहड़ा है हर हर नाम जपंतियां होआ मुख पवित्र। जिहड़ा मनुख हरि परमेश्वर परमात्मा दा नाम सिमरदा है उहदी रसना सफली हुंदी है, उहदा मुख सफला हुंदा है। क्योंकि मुख सुहावा जा तो जस गावे। मैं एक दिन पहला भी बेनती की सी, जदों सतगुरु पिता महाराज जी का ये पावन शब्द आया सी कि कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना। यह मेरी जीबा तू रब दे गुण गा। क्योंकि ये जबान जिहड़ी है
ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਭਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਔਰ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੀਭਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਭਾ ਦਾ ਅਗਰ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਗੱਜ ਜਿਹਵਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ, ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੋਂ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਉਹ ਮਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਮੀਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਮਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਭਾ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਉਸ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਵਸਤਾਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਜਾਵਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਅਦਬ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ? ਫਿਰ ਖੁਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ
तो ये चंगे संस्कारां की निशानी नहीं है। जिन्होंने सोझी होंदी वो पहला पुछते ने बीजी कित्थे ने, बापू जी कित्थे ने। वो कहते भी ने कोई नहीं चाह पी लो फिर मिल लियो, वो कहता भी चाह बाद च पी लांगे पहला मिल ली, इस की फर्क है। फिर महसूस भी होंदा है भी जे घर विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश सी ते पहला मैनू उत्थे मत्था टेकना चाहिए सी। फिर जदों जाईदा है ते मन भी खुश होंदा है कि चंदोवा लाउण विच महाराज का सुख हासन करन विच भावें छोटा जिहा ही है, उन्होंने पलंग भी बनाया है। हुण गल इत्थे मुकदी नहीं है, गल गुरु घर की सेवा संभालती नहीं है, गल है गुरु घर नूं मनण दी। एक गल बड़ी सोहनी असी हुण अजकल करदे हां कि असी गुरु नूं मनदे हां, असी गुरु दी नहीं मनदे। असी गुरु नूं मनदे हां, सारी दुनिया मत्था टेकदी, सारी दुनिया हाथ जोड़ती है, पर सवाल है भी गुरु दी कौन मनदा है। जीवन सफल उदन होवेगा जिदन असी गुरु दी मनांगे। हुण भी मैं जदों घरों तुरना सी तो विदेश विच बैठा एक मेरा वीर मेरे नाल गल कर रहा सीगा, की होएगा? मैं कुछ नहीं होएगा, हर बंदा गुरसिख हो जाएगा। हुण असी परहेज करांगे किसी दे हथों लैके खाण लगे हां, जतन करांगे कि असी आप बना के पका के खा लीए, थोड़ा खा लीए, सादा खा लीए। सब तो वड्डी गल की होएगी, दुनिया की रफ्तार दे विच कमी आएगी। और तुसी नोट किया होएगा कि जिहड़ा पिछले 10-15 सालों दे विच सानू लगे है कि बंदे ने बहुत कुछ कमाना शुरू कर दिता है, उहदे विच असी बहुत कुछ अपना गवाउणा शुरू कर दिता सी, असी वापस मुड़ आवांगे। दुनिया की रफ्तार घटेगी, रफ्तार घटेगी तो इच्छावां तृष्णावां भी घटणगियां। कितना किते सबर संतोख भी साडे जीवन विच वापस आएगा। मतलब दुनियावी पढ़ाई नूं छड्डो, असी गुरबाणी नूं लिया के इत्थे खड़ा कर दिता कि किहड़ा पाठ किन्ने दिन करिए ते किहड़े गुरुद्वारे किन्ने दिन जाइए। असी इन्ने कमर्शियल हो गए, इन्ने व्यापारी हो गए, इस कदर साडे अंदर पैसे की होड़ पैदा हो गई, इस कदर असी अपनी जिंदगी नूं पैसे नाल मिलना तोलना शुरू कर दिता कि असी नितनेम तो भज गए। असी गुरु की बाणी तो दूर चले गए। हुण आसा की वार सुनने वास्ते ये कहना पिया कि ये आसा पूरियां करने वाली बाणी है। पुछो भी आसा ते पानी फेरन वाली कोई बाणी हैगी है कि जिहड़ी तेरियां आसा ते पानी फेर दवे? किसी ने रोकया? नहीं रोकया। देखो दुख भंजनी का नवा गुटका पैदा हो गया। छोटी जी एक पोथी दुख भंजनी नवी बाणी तैयार कर ली बंदे ने। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच किहड़ी बाणी है जिहड़ी पढ़ीए ते दुख लगदा है? कोई है बाणी ऐसी, कोई शब्द है? आपां नूं सारिआं नूं पंथक तौर ते इकट्ठे हो के फैसला करना चाहिए भी ये शब्द भाई ठीक नहीं है, इहदे नाल ते दुख लगदे ने। सच की है? दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। कि सारिया गल्लां धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो असी उल्ट नहीं कीतियां। बाणी गुरु सी
गुरु बाणी सी, सारी बाणी विच अमृत सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਜੀ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਓ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਲੇ ਖਾਣੇ ਬਾੜੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਲੇ ਕੋਈ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੂਰੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਜਲ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਛੋਲੇ ਮਾੜੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਛਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਛੋਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਗ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਅਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਜਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਣੀਆਂ ਆਖਿਆ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਮਾਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਫੜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਛੱਡਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਠਾਕਰ ਜੀਓ ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਣਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਪਰਨਾ ਸਹਾਰਾ।
हुण सभे भज्जो भज्जै आसरा, सबो भज्जै आसरा, चूकै सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न तती वाओ। महाभारत की कथा की है? देखो तो बड़े पहलू ने। एक पहलू की है कि द्रौपदी ने माड़ा बोलिया, लमो ने खता की, सदियों ने सजा पाई। कि जे उसने दुर्योधन नूं अंधे दा अंधा किया, मैं रोज बेनती करदा अपने भरावां नूं भी, अपने कौम दे आगूआं नूं भी, तुहानूं बोलण दा हक रब ने दिता है, जबान तुहानूं किसी बंदे ने नहीं दिती, तुहाडा राइट है, बोलो तुसी, पर माड़ा ना बोलो। माड़े बोलण दी सजा तुहानूं भुगतनी पैनी है। तुसी क्यों माड़ा बोलोगे किसी नूं? मेरी अपनी जिंदगी का एक प्रिंसीपल है, मैं तुहाडी गल ना मन्ना, ये मेरा हक है। नहीं मनदा जी, मैं तुहाडी गल नहीं मन सकदा जी, मैं तुहाडे कहण ते इदां नहीं कर सकदा जी, मैं गल तुहाडी ना मन्ना, ये मेरा बर्थ राइट है, ये मेरा जमांदरू अधिकार है। पर मैं तुहानूं माड़ा बोला, ये अधिकार मेरा नहीं है। तुसी आए हो, मैं तुहानूं वैलकम कवां, तुहानूं जी आया कवां, तुहानूं बैठण लई कवां, तुहानूं चाह पानी लई कवां, ये अकल है, ये सलीका है, ये मत है, ये सियाणप है, ये तुहाडी दानश्वरी है। चलो मैं ये कुछ भी नहीं किया, ना मैं क्या आओ जी, ना मैं क्या बैठो जी, ना मैं क्या जी पानी पियो जी, क्योंकि मैनू एक अकल होएगी नहीं, ना मेरे को दानश्वरी होएगी, ना मेरे को मत होएगी, ना मेरे को सलीका होएगा। ठीक है, मैं गल्लां नहीं कीतियां, पर यह किन्ने कहता भी किधर आया मुँह चुक के? ये राइट मैनू किन्ने दिता है? किसी की बेइज्जती करने का हक तुहानूं दिता है किसी ने? साडे तो गलती इत्थे हो रही है। तुसी नहीं लाइक करदे किसी नूं, ओहदी इज्जत ना करो, पर तुसी बेइज्जती करोगे, ये तुहानूं राइट किन्ने दिता है भाई? फिर ये जरूर चेता रखना, फिर आपे बीज आपे ही खा। जे माड़ा बोलोगे तो उसका फल तुहानूं माड़ा ही मिलेगा। तुसी किसी की इज्जत ना करो, कोई फर्क नहीं पैंदा, पर तुसी किसी की बेइज्जती करोगे, कोई बर्दाश्त नहीं जे करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तुसी अपनी गल कहो, तुहाडा हक है। धर्म की दुनिया के ठेकेदारों, राजनीतिकां तो सिख लो। हर राजनीति दे मंदिर विच, पार्लीमेंट दे विच एक ओपोजिशन होंदी है। ओपोजिशन दियां वखरियां चेयर होंदियां ने, ओपोजिशन की एक पोस्ट होंदी है, बकायदा एक ओपोजिशन का लीडर होंदा है। इस सारियां गल्लां प्रवान कीतियां गईयां ने। ये जरूरी नहीं कि सारे बंदे मेरी मत, मेरी बुद्ध, मेरी अकल दे सारे अनुसार होण, कदे हो ही नहीं सकता। गुरु अमरदास पिता जी का कल असी गुरपुरब मनाया है। सतगुरां दे महल माता जी कहन लगे बीबी भानी का रिश्ता करना है। गुरु अमरदास महाराज कहन लगे भी कोई लड़का तुहाडे ध्यान विच है? माता जी कहन लगे हाँ, मैं चाहनी हाँ कि जेठे वर्गा कोई लड़का सानू मिल जाए।
सतगुरु कहन लगे भी जेठे वर्गा तो नहीं मिल सकता, जेठा तो हो सकता है पर जेठे वर्गा कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि उस परमात्मा ने कोई किसी वर्गा पैदा किया ही नहीं। मैं हमेशा बेनती करदा, पहली गल साडी एक दूजे नाल शक्ल नहीं रलदी, इत्थों ही पता लग जाना चाहिए भी वह होर है तो मैं होर हाँ। चलो भैणां ते भरावां दी कई बारी शक्ल रल जाती है, फिर अकल नहीं रलदी, उतों पता लग जाता भी सारे वखरे वखरे ने। अकल भी रल जाए तो किस्मत नहीं रलदी। फिर आप ये किवें कहिए भी हर बंदा मेरी बोली बोलेगा जी, हर बंदा उवें ही बोलेगा जिवें मैं कहांगा जी, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बोलो, तुहानूं बोलण दा हक है, पर अपनी गल निमरता नाल कहो, अपना इतराज दर्ज कराओ कि लिखो कि मैं तुहाडे नाल सहमत नहीं हाँ। मैं तुहाडे नाल नहीं सहमत हैगा, क्योंकि गल्लां ते दो तीन तरीके मन्ने जाणगे ना, जां ते सर्वसम्मति मन्नी जाएगी जां बहुत सम्मति मन्नी जाएगी। जां ते वो फैसला होएगा जिन्हों सारे प्रवान करन, ते जां फिर यही है भी जिधर बहुते बंदे होणगे वो फैसला मन्निया जाएगा। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है, विच सारी बाणी दे अमृत है। इस बाणी नूं पढ़न वाला कोई भी मनुख जिहड़ा है वो सुनते पुनीत कहते पवित्र। सुनन वाला पुनीत है, कहण वाला पवित्र है। ये बाणी नूं जिहड़ा भी पढ़ेगा दुख रोग संताप उतरे। सुनी सची बाणी, बाणी सुन के तो वेखो, सुनने गीत सुनिया गालां, कदे बाणी सुनी है? जिस दिन असी बाणी नूं सुनांगे, सुने दियां जपजी साहब दे विच 4 पौड़ियां ने। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत धवल आकाश। सुनो तो सही, नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सुन के तो वेखो, असी तो गुरुद्वारे आके सुनने लिए तैयार नहीं है। इसे करके मैं बेनती करदा भी गुरुद्वारे आके पाठ ना करया करो, ये तुहाडा होमवर्क है, घर करया करो। गुरुद्वारे काहदे लई आउणा है? वो जिहड़े 4 कर्म ने ना सिख दे, उहदे विच चौथा कर्म है। पहला की है अंतर गुर आराधना, दूजा की है जेवा जप गुर नाओ, तीजा की है नेत्री सतगुर पेखना, चौथा की है श्रवणी सुनना गुर नाओ। गुरुद्वारे सिर्फ सुनने वास्ते जाना है। उत्थे बह के पाठ सुनो, उत्थे बह के कीर्तन सुनो, उत्थे बह के कथा सुनो। फिर रब ने 2 कन दिते ने, ये नहीं भी इधरों बोलता सी जी मैंने सुनिया नहीं, इधरला कन वखरा है, इधर कोई बोलेगा तो इधरला कन वखरा है। सुनना एक कला है, सुनना एक आम गल नहीं है। इहदियां 4 पौड़ियां ने, और जिन्हां ने सुनिया नानक भगता सदा विगास। विगास कहते हैं खेड़ा, खुशी। चलो मैनू तुसी दस दो, तुहानू किहड़ा भगत खुश मिले अज तक? भगत है ही हो जिहदे चेहरे ते नूर है। खुश कौन होएगा? खुश हो है
ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਤਾਤ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਡੇਂਗੂ ਬਿਮਾਰੀ है, कोरोना बीमारी है, फ्लू बीमारी है। पराई तात कोई बीमारी नहीं है। पराई तात की है कि लोगों के सुख वेख के सड़ी जाना। ਇਹਦਾ सूट वधिया क्यों है, ਇਹਦੀ घड़ी वधिया क्यों है, ਇਹਦੀ गड्डी वधिया क्यों है, ਇਹਦਾ घर वधिया क्यों है, ਇਹਦੀ पदवी वधिया क्यों है, ਇਹਨੂੰ लोग चंगा क्यों कहते हैं। ਇਹਨੂੰ कहते हैं पराई तात। और ਇਹਦਾ इफेक्ट की है कि जिसके अंतर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला। तुसी कदे बांदर नूं समझण दी कोशिश कीती है? असी दो ही गल्लां समझियां ने। एक जी सवेरे उठ के बांदर दा नां नहीं लेना। पुछना सी बजुर्गां नूं भी ओहदा नां क्यों नहीं लेना। पिता जी मैं मान ली गल, चलो 12 बजे तो बाद दस दिओ भी दसो तो सही लेना क्यों नहीं है। पूरी प्रकृति विच पूरी धरती ते इको ही जीव है जिहदा अपना घर नहीं। सवेरे उठ के ओहदा नाम लओगे तो तुसी की सोचते हो कि तुहाडी कोठी बन जाएगी। सवेरे उठ के ना किसी चंगे बंदे दा लो। तो तुहानू पता है बांदर दा घर क्यों नहीं हैगा? इस करके नहीं हैगा कि जिथे बांदर रहिंदा होवे ना उत्थे घर किसी दा भी नहीं हुंदा। ते रब ने उन्होंने कोई ऐसी बद दुआ सराफ दिता है कि जे तू किसी दा घर वेख नहीं सकदा, तू किसी दा घर रहन नहीं दे सकदा, तो जा इस धरती ते तेरा कदे घर नहीं होएगा। मैं कल भी बेनती की सी, मैनू खिमा कर देना कि मैं अपनी मां की गल करदा। मेरी मां कहती सी रब्बा सब दा भला कर, किसी दे पैरों पिछे मेरे बच्चों का भी भला कर। मंगदी अपने बच्चों का भला सी। मेरी मां ब्रह्म ज्ञानी नहीं सी, मेरी मां स्वार्थी सी। उन्हें बड़े महंगे पुत लै सी। बड़ी जिंदगी की अखीर में जाके उन्होंने बच्चे मिले सी। इको गल कहती सी, कहना की चाहती सी मेरे बच्चों का भला कर। पर शुरू कित्थों होंदी सी? कहती सी रब्बा सब दा भला कर, किसी दे पैरों पिछे मेरे बच्चों का भी भला कर। जिहड़ा आपां रोज कहने हैं ना सरबत दा भला। मैं मंजी साहब भी बेनती की, मैं इत्थे भी बेनती की, मैं अज फिर बेनती करदा सरबत दा भला तुहाडी अरदास नहीं है। इस भुलेखे चों बाहर आ जाओ। सरबत दा भला तुहाडी अरदास नहीं, सरबत दा भला गुरु नानक दे घर दा प्रिंसीपल है। कईयां ने इसे करके मुड़ के पानी पियाना, चाह पियानी, लंगर वरताउणा, झाड़ू मारना उन्होंने बंद कर दिता। वो कहंदे मैं सरबत दा भला मंग लिया। सरबत दा भला तुहाडे घर दी अरदास नहीं है, सरबत दा भला गुरु नानक दे घर दा प्रिंसीपल है। कदे अरदास करदियां नोट करियो, मैं जिन्ना चिर ये शब्द पूरा नहीं हो जाता कि तेरे भाणे सरबत दा भला, मैं मत्था नहीं टेकदा। मत्था किनू टेकना है? सरबत दे भले दे प्रिंसीपल नू, सिद्धांत नू कि हे गुरु नानक अज तो बाद मैं कोशिश करांगा कि मैं कुछ भी करा उहदे विच सरबत दा भला होना चाहिए। सारी दुनिया लुट लो तुसी, फिर कहो जी असीं सरबत दा भला मंगदे आ। सरबत दा भला मंगण वाला दुध च पानी नहीं पा सकदा, सब्जियां नूं टीके नहीं ला सकदा। सरबत दा भला मंगण वाला किसी दा बुरा नहीं कर सकदा। ते अज तुसी भरावां दीयां जमीनां अपने नां करा लो, माँ प्यो नूं घरों कढ दिओ, फिर भी सरबत दा भला मंगी जाने हो तुसी। सरबत दा भला तुहाडे घर दा प्रिंसीपल है। तुसी ये दसो किसी दा कीता है? बस इन्नी गल है।
दुनिया कहती है कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। भला करके तो वेखो, नेकी करके तो वेखो। किसी दिन किसी का भला करे हो जे, उस दिन अपने मन की अवस्था पढ़ लियो जे। असी सवेर तो तुरते हैं, सवेर तो सोची जाने हैं। किसी का बुरा हो जाए, क्यों भाई तेरे कहण ते हो जाएगा। कदे कावां दे कहण ते ढोर मरदे ने, जे कावां दे कहण ते बलद मरदे ते खुरलियां खाली हो जानियां सी। जटां दियां पंजालियां रह जानियां सी, गड्डियां दे गड्डे खड़े हो जाने सी। कुछ सवेरे उठ के कां ने कहना सी ढग्गा मर जे मैं ते मांस खाना है। अगर मैं किसी का बुरा सोचांगा भी तुसी की सोचते हो बुरा हो जाएगा ना। इस करके तू बुरा क्यों सोचदा है किसी का भाई? तू अपने भले बारे सोच। सच्चे पातशाह ने सानू जिहड़ा रस्ता दिता है, उस रस्ते दे विच तुसी किसी का चंगा कर सकते हो, माड़ा नहीं कर सकते। हाँ, किसी लिए चंगा बोलो। मैं तो एक आप जी नूं होर उदाहरण दिया, तुसी अपने घर विच बच्चे नूं मारदे हो ना, कदों तक? जदों तक तुहाडे अगे हाथ नहीं चुकदा, जिद्दों तक तुहाडे अगे बोलदा नहीं कि उस तो बाद तुसी अपने बच्चे नूं पनिशमेंट नहीं दिंदे, दिन्ने हो की करदे हो? उस तो बाद तुसी बच्चे नाल जदों गुस्सा होवे तो की करदे हो? तुसी बोलदे नहीं। दिन 5 नहीं टपदे, बच्चे दियां चीकां निकल जांदियां ने। वो मां नूं कहंदा है मम्मी पापा मेरे नाल बोलदे नहीं। कहंदी पुत्र तो उन्हां दा कहना नहीं मनदा है, जरूरी तेरे भी चपेड़ मार के गल करनी है। तुहाडी नहीं किसी नाल बनदी, 4 दिन चुप कर जाओ। अज जो मेरी कौम की हालत हुई है, ये व्हाट्सएप ने की है, ये फेसबुक ने की है, ये यूट्यूब ने की है। बोली जाता, हर बंदा ही बोली जाता। कि रब ने जबान तुहानूं इस काम लई दित्ती भी सारी कौम नूं लीरो लीर कर दिओ, तुसी पाड़ दिओ, तुसी बोलो, तुहानूं बोलण दा हक है। पर संतन स्यों बोलै उपकारी, मूर्ख स्यों बोलै चख मारी। बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रब रही है। ये जीभा दिती सी रब दी इबादत वास्ते, सिफत सलाह वास्ते। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत असी अपना भी काम कर लेंदे, असी अपनियां मतलब दीयां गल्लां भी इहदे नाल कर लेंदे, इहनूं वरत लेंदे थोड़ा बहुत। पर इहदे मिसयूज ने अज दुनिया का बहुत नुकसान किया है। बोलत बोलत बड़े बेकारा, जिन्ने वकार पैदा हो रहे ने, ये सारे बोलण तो हो रहे हैं। ये धर्म की अवधि है कि जदों तुसी जाके ये कहोगे ठाकुर जीओ तुहारो परना, परमात्मा मैनू सिर्फ केवल ते केवल तेरा आसरा है। मैं बेनती कर रहा सी कि महाभारत की कथा की है। एक पक्ष द्रौपदी ने माड़ा बोलिया, दुर्योधन उन्हों नगन करन तक गया, निर्वस्त्र करन तक गया। उहदा दूसरा पक्ष ही है, दूसरा पक्ष है कि हुण उही द्रौपदी जिहड़ी है वो कदे अर्जन कोल जांदी है, कदे युधिष्ठिर कोल जांदी है, कदे वो भीम कोले जांदी है। उहदे 5 पांडव सी ना, वो 5 कोले गई है। फिर अपने ददियोरे पतियोरे सारियां कोल गई है, भीष्म पितामह कोल भी गई है, धृतराष्ट्र कोल भी गई। वो कहता मैं तो दीदा ही नहीं। पर जदों उत्थे सारी सभा दे विच, क्योंकि जिहड़े जूए झार बैठे ने वो की करदे, आप कहने ना भी जूआ माड़ा है जी,
ਜੂਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜੂਏ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਦੂਜੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ। ਪਾਂਡਵ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठाकुर जियो तुहारो परना, मान मुहत तुम्हारे ऊपर। परमात्मा मैनू मान भी तेरे ते है, फकर है तेरे ते। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। तू डोलेगा नहीं, मैं डिगांगा नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀ ਹਿੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਸ ਲਈਦਾ, ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਸੜਕ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਾਬ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਆਦੇ ਰੱਛਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਓਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਟ ਹੀ ਤੇਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਵਨ ਕੋ एक है भगवान। जिसकै दिए रहे अगाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। बंदे दी ओट कदे ना लियो जे। रब दा आसरा परना जीवन विच प्राप्त करियो, फिर की होएगा? मान महत तुम्हारे ऊपर, तुमरी ओट तुम्हारी शरणा। मैनू सहारा भी तेरा है तो मैं सिर्फ तेरी शरण विच हाँ। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। ये तीन गल्लां कहणियां बनदियां ने। जदों गुरुद्वारे आओ उदों ही कहो तुमरी शरण तुम्हारी आसा, आस भी तेरी है। मैनू किसी रिश्तेदार की कोई आस नहीं कि मेरी बांह फड़ेगा। तुम ही सज्जन सुहेले, मेरा कोई फास्ट फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई सज्जन नहीं है। तुहानूं पता है दुख तुहाडे नाल की करदा है? दुख तुहाडी एक मदद करदा है कि तुहाडे जिहड़े भुलेखे हुंदे ने वो सारे मुक जांदे ने। जिन्हां दा कई बारी बंदा भरम पाल के बैठा हुंदा है ना भी ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, फिर की हुंदा है? पुछो गुरु तेग बहादुर पिता जी नूं महाराज की हुंदा है? वो कहते ने सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौहू दिस घेरै। रौनक ही लगियां रहिंदियां ने, कमरा भरिया ही रहिंदा है। विपत परी सब ही संग छाड़त। तो जदों पऊगी विपता, इन्हां चों एक बंदा नहीं लभना तुहानूं। इन्हां बंदियां चों ना जिहड़े तुहाडे बहुत नेड़े ने, एवें एक दिन ड्रामा करियो, भाजी
मैं एमरजेंसी च हाँ, मैनू रात का ना हॉस्पिटल लाया इन्हें घर वाले, मैनू ब्लड की लोड़ है, जे एक बंदा भी बोतल देन आ गया तो मैनू कह दिओ, सारिਆਂ ਨੂੰ शुगर हो जानी रातों रात। एक तो ड्रामा करके तो वेखो, वो बच्चा सी ना साध कोल जांदा सी ते साध ने कहना वो काका बह जा, उन्हें कहना नहीं जी माँ उडीकदी होएगी जी, बापू राह वेंदा होएगा जी, घरदियां ने रोटी नहीं खानी मेरे बिना। तो उन्हें फिर काके नूं एक दिन समझाया, उन्हें फिर जुगतियां उगतियां समझाइयां भी घर जावी इवें करी जिवें फटीक पैंदी है, खड़ा खड़ोते डिग पवी, साह चढ़ाउणा उन्हें सिखाता भी साह चढ़ा लवी अपना। वो घर गया तो उन्हें जाके साह चढ़ा लिया, रौला पै गया, मुंडे नूं की हो गया, मुंडे नूं की हो गया, मुंडा मुंडा मर चलिया, मुंडा मर चलिया। कई भजे वो साध कोले जाओ, वो कोल जांदा हुंदा सी, साध आ गया, बाबा जी मुंडा मर चलिया है, वो कहंदा भी मुंडा तो मर चलिया, बाबा जी कुछ करो, वो कहंदा भी मैं कर सकदा। पर करन वास्ते एक बंदे नूं अपनी कुर्बानी देनी पऊगी। हुण मां नूं कहा भी तू फटे ते पै जा, ये उठ पैंदा है, प्यो नूं कहा तू पै के वेख, दूजिਆਂ नूं कहा तुसीं पै के वेखो। वो सारे ने इको गल ही कही भी बाबा जी को मरिया नाल भी मरदा है। उन्हें कहा काका उठ, उन्हें साथ थले तारे, उठ पिया, कहता निकलिया भलेखा तेरा, तुसीं यकीन करना मेरा तो जिंदगी च कई बारी भलेखा निकलिया है। सब भज जाते हैं, सब भज जाते हैं, तुहानूं बंदे टैलीफोन नहीं करनगे। पुछो गुरु तेग बहादुर पिता नूं गुरुद्वारे आउण दा मतलब ये नहीं हुंदा भी वह घुंगणियां लै आंदियां ते गुरुद्वारे चले गए जी, एक सिरा चढ़ाता ते गुरुद्वारे चले गए जी। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, आके गुरु कोलों पुछ लो कि सच्चे पातशाह तेरे तो बिना भी कोई हैगा है, तो जवाब मिलेगा भी कोई नहीं हैगा। मैं एक बेनती होर करा, तुसीं हसो, फ्लाइट में हसोगे सारी फ्लाइट हसेगी, ट्रेन के डब्बे हसोगे उठ के हसना शुरू कर दो सारे हसणगे, बस में हसो सारे हसणगे, कमरे में हसो सारे हसणगे, परिवार में हसो सारे हसणगे, तुसीं रोण लग जाओ, एक भी नहीं रोएगा। सारे पता की कहणगे, कोई नहीं चुप कर जाओ भाई साहब चुप कर जाओ, भी हुण मेरे नाल रोवो खा। नहीं, रोना तुहाडे कल्लिआं दा है। तुहानूं चुप कराउणगे, रोणगे नहीं। जदों हसदे सी उदों किसी ने कहा तुहानूं नहीं भाई साहब ना हसो, उदों सारे दंद कढ़दे सी नाल। सुख में बहुत लोग तुहाडे कोल आउणगे, सुख में आण बहुत मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आबत नेड़े, कोई नेड़े नहीं जे आएगा। इस करके अपनी डायरेक्शन ठीक कर लो, अपनी ट्यूनिंग ठीक कर लो। अपने आप को ठीक कर लो, किसी भुलेखे च ना रवो। इत्थे वैदो ना वाई, भैणो ना भाई, एको सहाई राम है। इत्थे कोई किसी का नहीं है। वो धारना साधु पढ़ते होंदे सी, सवेरे सवेरे आउंदे होंदे सी, 3-4 बजे गलियां बाजारां च वो कहते होंदे सी कोई ना किसी का बेली दुनिया आपो अपनी। ये हकीकत है, कोई किसी का नहीं है। किसी ही कोई कोई मंझ नमाणी एक तू। सच्चे पातशाह मेहर करन इस पावन शब्द नूं आपां दृढ़ कर सकीए कि आसरा है ही रब दा, बाकी कोई आसरा है ही नहीं है। बाकी तो भुलेखे ने, सहारा सिर्फ रब दा है, बाकी भुलेखे ने। शरण सिर्फ रब दी है, बाकी भुलेखे ने। एवें ना किसी दे कोल जाके कहो जी मैं तेरी शरण आया, वो तो बेचारा आप उदा ही बैठा है।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੁੱਛੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲ ਤੇ ਹਾਕਮ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮਗੜੀਏ ਬੁੰਗੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਤਖਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੋਗੇ। ਤਖਤ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ। ਤਖਤ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਤਖਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓ